Okay, dear students, good evening. How are you? We have started the topic French Revolution. But my students, as I have told you earlier, you have to develop an integrated approach to the topic. मतलब आपको एक समग्र रूप से integrate करके पढ़ना है. So once again, I am just going to remind you the formula I have given to you earlier. You have to underline the change. Change, you can say the economic change, ideological change, social change, ideological change, and this cycle is going on: political change, cultural change, once again economic change. So you are already going across the topic French Revolution. When the commercial revolution and mercantilism that crystallized, that strengthened the power of the middle class. Middle class became much articulate from the time of Enlightenment, and then American Revolution occurred. After American Revolution, you find the case of the French Revolution. If I am just going to ask you, if you are making a comparative study of American Revolution and the French Revolution, on to which conclusion you people will come? What difference you can underline between the two revolutions? In case of French Revolution, you will find the changes were more pronounced, more clear, more, you can say, highlighted. Why? In case of French Revolution, you will just underline the changing class equation. तो हमने आपको कल के क्लास में छोड़ा है, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है. कॉजेज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके, बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके. अब रिवॉल्यूशन का कोर्स स्टार्ट हुआ है. तो कोर्स स्टार्ट हुआ है तो उसमें जो रिमार्केबल पॉइंट है आपके लिए, उस पर आप ध्यान रखना, उसको आपको मिस नहीं करना है. रिमार्केबल पॉइंट आपका यह है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि क्लास इक्वेशन कैसे चेंज होगा. जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, आप याद करिए, जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम टेनिस कोर्ट, व्हेन अ ग्रुप ऑफ, और यू कैन से द third state representatives, the representatives of the third state took an oath, that is the tennis court oath, कि we will not vacate this place till we are going to frame a constitution. And the monarchy, the French monarch, sent the army and police to get this place, you can say, to expel the revolutionaries and the representatives from there, and to use the force and coercive power and to make the place vacated. But when the police and army reached there in the meantime, the peasants from France and artisans from Paris, they belong to the lower class, that is popularly known as the mob of Paris. The mob of Paris, just you can say, gathered around the place. So the police and army could not penetrate into this region, you know. तो इसका मतलब है कि रेवोल्यूशन अकर कर चुका, रेवोल्यूशन हो चुका और उसको रोका नहीं जा सका. अब माय स्टूडेंट्स, अब आपको उसके क्लास इक्वेशन को समझना है. ये मिडिल क्लास रेवोल्यूशन है. लीडरशिप तो मिडिल क्लास ने अपने हाथों में ले लिया, लेकिन उस पर लोअर क्लास का प्रेशर है. So it is on this basis, if my students, you might have gone through my study material, you may have underlined there the 4 stages, and the stage was being decided on the basis of the changing class equation. In first stage, which started from 1789 to 92, that is called the stage of the first stage, the stage of constitutional monarchy. What is the time period? 1789 to 92. इस स्टेज में आप देख रहे हो कि क्या है, ये फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. इस स्टेज में रेवोल्यूशन इज इनटू द, बिकॉज यू कैन से कि थर्ड स्टेट, यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेट. टेनिस कोर्ट
assembly, so that was leading revolution. But there you can say in tennis court, assembly was also not a monolithic group. It was not a monolithic group. It was also diversified in nature. There was the middle class representatives and a large number of lower class people were just large number of lower class people gathered there. So middle class leadership had to lead them. So this was the tennis court assembly. तो जब revolution चलता है साथ में, तो 89-92 के बीच आप देखते हो इंसिडेंट पर गौर करना कि रेवोल्यूशन का लीडरशिप मिडिल क्लास के हाथ में, लेकिन प्रेशर लोअर क्लास का है. एंड इट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द लोअर क्लास व्हाट हैपेंड. रेवोल्यूशन थोड़ा रेडिकल हो जाता है क्योंकि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के इंटरेस्ट में डाइवर्जेंस है. आर यू पीपल क्लियर? What is the divergence in the objectives of the middle class and that of the lower class? मिडिल क्लास क्या चाहता है, लोअर क्लास क्या चाहता है, पहले दोनों को चाहने की बात सोचो. So the middle class was going to be satisfied with attaining political freedom. Middle class will prefer the constitutional monarchy, limited monarchy, and the lower class will prefer the democracy and economic redistribution, कि धनी लोगों से छीनकर निर्धन लोगों के बीच मिले. तो पहले my students, make me clear and make me assured. Anywhere you find difficulty, I am here to help you. Do you understand the difference in the objective of the middle class and the lower class? And how did the objective influence the course of the revolution? How did the impact of the middle class and the lower class respectively affect the course of the revolution? And in what way there was a divergence in the objective of the middle class and that of the lower class? Are you clear, my students? So please give me the information. Ankur, हमारे students से जरा पूछिए. Ankur, you have to ask the question whether my students are clear. What is the divergence in the view of and objective of the middle class and that of the lower class? मतलब middle class और lower class को objective में फर्क है और यह objective revolution को affect करेगा. ये इससे आप वाकिफ हो क्योंकि इसी पर पूरा revolution हमें समझना है. So please my students give me the hint. I'm just waiting for your answer. Be fast. Okay? Yes, sir. Yes. Up at the first, is it okay, Mr. Ankur? Yes, sir. Yes. Of the first incident I have mentioned yesterday, the decline of Bastille. That is 14th July 1789. I have mentioned about this incident, my friends, so I am just going further. Then to abolition of feudalism. Abolition of feudalism. In abolition of feudalism, 4th August 1789. About the abolition of feudalism, I have told you yesterday, I have made you clear, you should not get confused. Actually, I have earlier talked about the decline of feudalism, but decline of feudalism is the different thing. And abolition of feudalism is different thing. Decline of feudalism means that at that time, the feudalism declined as a political power, as a political force. But now there is the abolition of feudalism. It means that the feudalism lingered in the form of economic and social privileges. But if there is the abolition of feudalism, so even the economic and social privileges which were being enjoyed by the aristocratic class and that of the clergy class, so both were abolished. The clergy class was enjoying the right of collection of tithe, that was a religious tax, and even the aristocratic class was enjoying a lot of concessions from the tenants or the peasants, and apart from that, it was the
aristocratic class which was enjoying even the judicial power, so all the powers were abolished. लेकिन इस पर मिडिल क्लास का इंपैक्ट था. मतलब मैंने कहा कि जब सामंतवाद का अंत हुआ तो पादरी वर्ग, क्लर्जी क्लास और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के सारे प्रिविलेजेस समाप्त हो गए. लेकिन माय स्टूडेंट, चूंकि इस पर मिडिल क्लास का इंपैक्ट था, और मिडिल क्लास का सबसे प्यारा चीज क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी. मिडिल क्लास ऑलवेज प्रेफर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचा लिया. जैसे उनके पास जो अपने पर्सनल लैंड थे लैंडलॉर्ड्स के, वो प्रिजर्व हो गया. सैंक्टिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज एक्सेप्टेड. एंड इफ देयर कुड हैव बीन द बर्डन, एंड अगर यहां पर लोअर क्लास का अगर हेजेमनी होता, उसका अगर वर्चस्व होता, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी मिट जाती. लेकिन नहीं. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इन वन सेंस the aristocratic class and the clergy class, through losing their less important rights, they could preserve their more important rights. So actually it is on this point I have to make you clear how did they save their property. Now my students, I'm just moving further. The third one major is what? Third one major is declaration of rights of men and those of citizen. The rights of men and citizen, मतलब पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कब? 26 अगस्त 1789. 1789 को जब द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा. अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि डिड दिस डिक्लेरेशन फेवर आइदर द मिडिल क्लास और द लोअर क्लास? यू पीपल विल रिप्लाई माई क्वेश्चन कि व्हाट डू यू फाइंड कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, डिड सच डिक्लेरेशन फेवर्ड मिडिल क्लास और द लोअर क्लास? प्लीज रिप्लाई माई क्वेश्चन. बी फास्ट. मिस्टर अंकुल, इन्फॉर्म मी. Yes, my students, this is the actually means through which I come to know what you people understand. You are just understanding the right manner. It favored the middle class because you know the declaration of rights. Which rights have been discussed? किन अधिकारों की बात इन्होंने की पता है? Right to property. Right to property किसे फेवर करता है? मिडिल क्लास को. Right to सेफ्टी फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट किसको फेवर करता है? मिडिल क्लास को. देन इक्वलिटी बिफोर लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ और द रूल ऑफ लॉ दैट फेवर्ड द मिडिल क्लास. मीन्स here you come to know कि right to, you can say, expression, and all these things favor the middle class. But you will not find any right to work, right to employment. Such rights were not accepted, which would have favored the lower class, the middle class declaration. आप तो कहते हो right to privacy. Today, not at that time, right to privacy, उस समय ये concept नहीं आता कि right to privacy, you are just going to discuss about the right to privacy in the today's context. In India, you can say that Supreme Court has just declared it was the extension of the Article 19 and even Article 21. तो जो right to privacy है, ये तो middle class का right है.
लोअर क्लास क्या बोलेगा? लोअर क्लास को कहोगे राइट टू प्राइवेसी, कहेगा भाई मेरी लाइफ में प्राइवेट है क्या कि मैं राइट टू प्राइवेसी लूं? मैं तो वैसे भी सड़क के किनारे रहता हूं, ओपन डेफिकेशन है, ओपन बात है, हर कुछ ओपन है, तो हमारे लाइफ में प्राइवेसी रह कहां गई? तो प्राइवेसी किसके लाइफ में होगी? तो मिडिल क्लास के लाइफ में ही होनी, या फिर अपर क्लास से उसके लाइफ में होगी। सो माय पॉइंट इज दैट कि राइट्स को, ये मिडिल क्लास को, although it was a big thing, it was in one sense the Declaration of Rights and Man and Citizen was, or you can say give a death certificate to ancient regime, जैसे ओल्ड regime जिसको बोलते हो ना, उसी को बोलते हैं वो to ancient regime. Ancient means old regime, not ancient, ancient. So that was, you can say, ancient regime. In one sense, it gave a death certificate to ancient regime. And actually, Declaration of Rights and Men, it was not the first thing in history. Even you will find this case, even in, you can find the example of right to the Declaration of Rights in course of American Revolution as well. अमेरिकी क्रांति के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते हो वहां भी मानव अधिकारों की घोषणा हुई है। बिल ऑफ राइट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले लाई गई थी। इन फर्क क्या है यहां पता है? यहां फर्क यह है कि यहां पर जो राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन का जो डिक्लेरेशन है वो रूसो के जनरल विल के आधार पर, रूसो का जनरल विल तो आप लोगों को याद होगा, जनरल विल। व्हाट इज जनरल विल? रूसो ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट कि जनरल विल इज द सॉवरेन विल, मतलब कॉमन पीपुल की जो इच्छा है, जो सामूहिक इच्छा है, वही संप्रभुता है। दैट इज द कलेक्टिव विल ऑफ द कम्युनिटी इज जनरल विल, एंड दिस जनरल विल इज द सॉवरेन विल, मतलब पावर इसके अंदर है। तो यहां जिस समय तुमने जनरल विल क्या नाम ले लिया, इसका मतलब है कि आपने कॉमन पीपुल की बात करी। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन है, वो पहले के जो डिक्लेरेशन आए हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उससे डिफरेंट हो जाता है। उसी तरह नहीं, उससे डिफरेंट है वो। अब फोर्थ वन, व्हाट फोर्थ वन? फोर्थ वन इज, जस्ट ट्राई टू रिकॉल, फोर्थ वन इज enforcement of a new constitution. New constitution in 1792. Here I have to inform you, I have told you in tennis court, in tennis court conference, in tennis court sabha, in fact the third state representatives just took the oath and started a session, and on 20th June it declared itself to be the National Assembly कि हम parliament है। So right from the time it was known as the National Assembly. So the so-called National Assembly, this was the self-styled National Assembly, it started to work as a constituent assembly as well, because it was side by side, it was framing the constitution. So finally we can say within 2 years the constitution was framed and constitution came into existence, and then in 1791 this constitution enforced. Okay, अब मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट हुआ, उसमें क्या प्रोविजन था, मैं आपको बताता हूं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन्फोर्समेंट है वो 1791 में है, और 1792 में वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। आई विल डिस्कस अबाउट दैट।
Who has asked this question? हाँ, my friends, you are correct. Even in 1792, a new constitution was introduced, but this constitution was introduced by whom? That was the Jacobean leaders. I'll discuss about when the France was declared to be a republic. So it was a republican constitution. Here I believe this in constitution you will find constitutional monarchy, not republic. मैं आपको क्लियर करता हूं अभी. This believes in constitutional monarchy. देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में नेशनल असेंबली ने बना. इस पर मिडिल क्लास लीडरशिप का इंपैक्ट था. अगर मिडिल क्लास लीडरशिप का इंपैक्ट नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं होती, संवैधानिक राजतंत्र. यानी लुइस 16 को अभी तक रहने दिया गया, लुइस 16 को नहीं हटाया गया. हालांकि लुइस 16 का प्रेस्टीज को धक्का लगा. प्रेस्टीज को धक्का इसलिए लगा कि एक बार वह अपनी पत्नी मेरी एंटवाइनेट, हु वाज द क्वीन, along with Mary Antoinette, he tried to flee away from France secretly in a cab. He was just on the point of crossing the border of France and entering into Belgium, but he was caught by the National Guards. And once his escapist effort turned to a failure and he was caught up with red-handed. So after that he lost his old prestige in the eyes of the common French people. But still, my students, you have to recall that monarchy was not abolished. Monarchy still existed as a symbolic power, simply a constitutional head, just like the British monarchy, you can say. And the real power lay in the elected government. And this election, so on the basis of the new constitution, in new constitution, what you find? Constitutional monarchy, B, unicameral legislature, unicameral legislature. You find the meaning of unicameral legislature का मतलब है एक सदन, दो सदन नहीं, एक सदन, एक चैम्बर. unicameral legislature means कि legislature with one chamber. C, separation of power. D, limited franchise. Limited franchise. Constitutional monarchy, unicameral legislature, separation of power and limited franchise. ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र था, एक सदनीय व्यवस्थापिका थी, शक्ति का पृथक्करण था, सीमित मताधिकार था. अब one question from you people. Please answer my question. What do you think? On this constitution, was there impact of the middle class or the lower class? इस कॉन्स्टिट्यूशन पर किसका इंपैक्ट आपको दिखता है? मिडिल क्लास का इंपैक्ट है कि लोअर क्लास का? बी फास्ट माय स्टूडेंट्स, डोंट टेक माय टाइम. मैं जो क्वेश्चन पूछूं तो आप क्विकली आप रिप्लाई करो, ताकि मैं फिर आगे आपको दूसरा क्वेश्चन डाल सकूं. प्लीज बी फास्ट. मिडिल क्लास. ओके, एक मिनट जाओ. हाँ, थैंक यू. यू राइटली क्विट मिडिल क्लास. अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आपको जवाब देना है, लेकिन आप लिख कैसे पाओगे? यू आर नॉट हैविंग सच ए टाइम एंड स्पेस. आई कैन वेरी वेल अंडरलाइन योर कॉन्स्ट्रेंट. जस्ट आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेरी? जतिन पूछ रहे सर, पेरिस मॉब इंटरनली डिवाइडेड बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. सो दैट टाइम व्हाई मोनार्की not crush this? Actually, monarchy already lost its power and prestige, you know. And Jatin, mob of Paris was not divided at that time. मैं आपको जतिन, you may be a bit, मतलब यहाँ पर confusion होगा, मैं आपको बता दूं. जतिन, are you okay?
Are you mentally alert? Even my other students have to pay attention to my speech in हिंदी और इंग्लिश. अब किस लैंग्वेज को यूज करूं? चलो मैं हिंदी में ही बोल देता हूं, आप लोग समझ लोगे. देखो, मॉब ऑफ पेरिस का मतलब है पेरिस की भीड़. मॉब ऑफ पेरिस, हम मिडिल क्लास को मॉब ऑफ पेरिस नहीं बोल रहे. मॉब ऑफ पेरिस में है पेजेंट्स फ्रांस के और आर्टिजन्स हैं वो पेरिस के, माने पेरिस के जो दस्तकार हैं, शिल्पी कारीगर हैं, वो कहलाए मॉब ऑफ पेरिस. वो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और मिडिल क्लास लीडरशिप जो एजुकेटेड पर्सन है, मर्केंटाइल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स है, कैपिटलिस्ट क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एजुकेटेड पर्सन है, लॉयर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, वो मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो उसमें क्या है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास साथ चल रहे हैं इस रेवोल्यूशन में. दोनों का ऑब्जेक्टिव डाइवर्जेंट है, अलग अलग है, लेकिन डायरेक्ट टकराहट नहीं है. लोअर क्लास के लोगों को मिडिल क्लास अभी चीट कर रहे हैं. मिडिल क्लास लीडरशिप, लोअर क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको लग रहा है मिडिल क्लास को अपने बड़े भैया की तरह देख रहे हैं, जस्ट लाइक द एल्डर ब्रदर. He will take a lot of concessions, so some concessions had to accrue to us also. मतलब उनका ये मानना है कि भाई ये जो कंसेशंस लेंगे उस कंसेशंस का पार्ट हमें भी मिलेगा. वो ऐसा नहीं सोच रहे कि ये हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं. एंड मिडिल क्लास लीडरशिप बड़ी चालाकी से लोअर क्लास के रेवोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने फेवर में कुछ काम करवा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, और अंकुर, इज इट ओके? ओके. और भी है? हाँ तो बोलो. आयुष पूछ रहे सर, इन अमेरिकन रेवोल्यूशन, बोस्टन मैसेकर, बैटल ऑफ बंकर हिल, बैटल्स ऑफ साराटोगा are important topics or not? Not important. Ayush, no important topic. Ignore it. Rahul पूछ रहे सर, after constitution made, what about voting rights? वोटिंग राइट्स में लिमिटेड फ्रेंचाइज. तुम लोग लिमिटेड फ्रेंचाइज कौन पूछ रहे हैं? राहुल, लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब नहीं समझते. मतलब सभी को वोटिंग राइट नहीं था, केवल प्रॉपर्टी. जैसे देखो, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट, और ये बेसिकली इट वाज नॉट सिंपली द क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी है. देखो, एक्चुअली देयर इज द वन टर्म, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि सभी को वोटिंग राइट मिले. लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिले. और लिमिटेड फ्रेंचाइज कौन चाहता है? तो मिडिल क्लास चाहता है. मैंने इनलाइटेनमेंट में भी आपको बताया है. क्यों? तो मिडिल क्लास को डर होता है कि जो लोअर क्लास है, वह लोअर क्लास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, तो जो लोअर क्लास पीपल होंगे वो हमको आउटवोट कर देंगे, वो हमसे मेजोरिटी ले लेंगे और हम लूज कर जाएंगे. तो चाहता है लिमिटेड फ्रेंचाइज रहे, उनको पावर ना जाए. अब कहोगे भाई लिमिटेड फ्रेंचाइज रहे तो क्राइटेरिया क्या होगा वोटिंग का? तो क्राइटेरिया है कि जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकता है. तो ऑब्वियसली उसमें लोअर क्लास के लोग छट जाएंगे. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा तो जाहिर है. अब आप लोग मेरे इस क्वेश्चन, हाँ और कुछ अंकुर है जो दो फटाफट बोलो. Yes. आयुषी पूछ रही है सर, इज देयर एनी रेवोल्यूशन वेयर एवरी क्लास हैज इक्वल से? बिकॉज़ वॉइस ऑफ वन क्लास इज नॉट फेयर. आयुषी, इट इज almost impossible कि there should be any revolution in which all the classes would have the equal say. In every revolution there is hegemony of the one or two classes. सिद्धांत पूछ रहे सर, you didn't told about the immediate factor of American. सिद्धांत, American revolution immediate factor, Boston's Tea Party I have mentioned. Boston's Tea Party became the immediate factor. So I have already discussed with you Boston's Tea Party. सिद्धांत, तमन्ना सर नेशनल असेंबली में सिर्फ थर्ड स्टेट था, तो व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट? हाउ? तमन्ना, एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से तो पहले डिफरेंसेस हो गया था. जब पैलेस के अंदर जब स्टेट जनरल की सेशन हो रहा था, स्टेट जनरल के सेशन को बाइकआउट करके थर्ड स्टेट टेनिस कोर्ट में चले गए ना. तो अपने साथ तो कोई वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को लेकर नहीं गए, उनसे तो उनकी एनिमिटी थी. तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के रह गए, स्टेट जनरल के दो चैम्बर्स यही रह गए, और जो तीसरा है वो तीसरा यहां से चले गए टेनिस कोर्ट में और जाके अपना एक सेपरेट असेंबली बना ली. तो यही चीज है. अब मैं रिप्लाई माय वन क्वेश्चन सो दैट आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि यू पीपल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट.
अब तुमने हमें कहा कि इस पर मिडिल क्लास का आइडियोलॉजी का इंपैक्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन पर। अब आप बताइए इस पर क्या इंपैक्ट होता या क्या एलिमेंट्स होता जब आप इस पर लोअर क्लास का इंपैक्ट देखते। अगर इफ देयर वुड हैव बीन द इंपैक्ट ऑफ द लोअर क्लास, व्हाट कुड हैव बीन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस पर लोअर क्लास का इंपैक्ट होता तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर उभर के आता, एक फीचर आप बता दीजिए, और बता दीजिए कि अगर लोअर क्लास का इंपैक्ट रहा था इस तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमुक चीज होता, क्या होता। प्लीज बी फास्ट, जल्दी टाइप करिए। Maximum security, universal adult. Yes, my students. अब now I have been confident कि you people understand. आप अगर मेरे सामने बैठे रहते तो रूबरू पूछ लेता। आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए तो इन राउंड आउट वे में पूछ रहा हूं, एंड देन आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आई एम हैबिचुएटेड टू द सिचुएशन कि ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स शुड बी एनलाइटेंड। वो उनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि मैं लेक्चर देते हुए निकल जाऊं, आपको पढ़ाते हुए निकल जाऊं। मैटर आपको वाकई में आपको पता होना चाहिए। और देखो, मैं आपको जो रिटन फॉर्म दे रहा हूं वही आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफी होगा। बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप बुक्स के चक्कर में मत पड़ना। अभी आप मेरे साथ चलते रहो, मेरे स्टडी मटेरियल को पढ़ते रहो, एंड देन आई विल माई सेल्फ यू गिव यू द गाइडलाइन कि व्हाट यू पीपल हैव टू डू इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इन मॉडर्न हिस्ट्री। I have recommended certain books because it was in prelims as well. This is not the part of the prelims, you know. You people are right. If there would have been the impact of the lower class, so there could have been there might have been the provision of universal adult suffrage or universal adults franchise. You are right. Now, one interesting question I have to share with you. In optional paper, once there was a question, there was a statement, short note statement. The French Revolution made an attack on privileges but not on property. Comment. In 2007, the French Revolution made an attack on privileges but not on property. मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, न कि संपत्ति पर। कमेंट करिए। अब पता है आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट टू राइट। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या लिखना था पता है? इसमें बताना ये था, इसमें ये हमारा स्टैंड होना चाहिए कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिविलेज पर अटैक किया, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन अटैक्ड ऑन प्रिविलेज बट नॉट ऑन प्रॉपर्टी। दिस फिनोमेना शुड बी एक्सप्लेन्ड in context of the class interest. As this revolution was led by the middle class, the middle class was definitely jealous of the privileges of the aristocratic class and the clergy class. But the same middle class was always believes in the sanctity of the private property. So it didn't try to abolish the right of private property. And you cite the example of feudalism, even after the abolition of feudalism. The private property of the feudal lords was saved. क्योंकि एक कहावत आपने सुनी है, उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अगर मिडिल क्लास अटैक करता तो सब उसकी अपनी प्रॉपर्टी पर भी अटैक हो जाता। एक कहावत आपने सुनी होगी, जिसका घर स्वयं शीशे का हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकती। वही बात वहां लागू हो रही थी। तो एक आप दोगे फ्यूडलिज्म पर, वह फ्यूडलिज्म है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का फ्यूडलिज्म में, फ्यूडलिज्म के एबोलिशन के बाद भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बने रहने दिया गया, उसको नहीं रिमूव किया गया। और सेकेंड वन एग्जांपल है कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अच्छा, राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन की जो घोषणा हुई उसमें भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया गया। इसमें भी ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है इसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया गया है। In this way, very simple,
if you are having the conceptual clarity, you will not find any difficulty in answering the question. Now, first stage is over, revolution. First stage of the revolution is over. Then we are moving to the second stage, Second stage. Second stage. Second stage, what is the time period? That is the phase of radical republicanism. The phase of radical republicanism. What is the time period? 1792 to 94. What happened? I have to make you clear. अच्छा हाँ, here I have just told you unicameral legislature. Unicameral legislature, that is एक सदन वाली व्यवस्थापिका थी. अब देखो, अब ये नए कॉन्स्टिट्यूशन को on the basis of the constitution of 91, a government was formed and unicameral legislature started to function. नेशनल असेंबली थी, उसने काम करना शुरू कर दिया. अब do you know, two things happened, what happened? So actually during this phase, now the lower class threw middle class out and the lower class overpowered the revolution. Why did lower class do so? Because lower class definitely developed a sense of disillusionment with the middle class leadership. Earlier you can say that the lower class were looking towards the middle class for leadership and they believed in the fair play of the middle class leadership. But after some time they realized that possibly they are getting cheated. So that's why they threw out the leadership of the middle class and captured the whole revolution. And as there was the impact of the lower class, so revolution turned to be radical now. अब देखो, लोअर क्लास की तो तासीर ही होती है कि जो आएगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं समझेगा. और इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि पहले मैंने आपको बताया कि लोअर क्लास मिडिल क्लास की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे छोटे भैया बड़े भैया की ओर देख रहे कि बड़े भैया हमारे साथ जस्टिस करेंगे. लेकिन जब लोअर क्लास ने ऐसा फील किया कि नहीं, मिडिल क्लास लीडरशिप विल नॉट डू जस्टिस टू अस, तो लोअर क्लास ने मिडिल क्लास लीडरशिप को थ्रो आउट कर दिया. जिस समय लोअर क्लास लीडरशिप को उसने थ्रो आउट किया, बस सॉरी मिडिल क्लास लीडरशिप को थ्रो आउट किया और कैप्चर कर लिया रेवोल्यूशन को अपने हाथ में. तो कैप्चर कर लिया तो रेवोल्यूशन रेडिकल हो गया, क्योंकि मिडिल क्लास तो अभी रेवोल्यूशन को एक तरह से कंट्रोल करके जा रहा था, कंट्रोल समाप्त हो गया. लोअर क्लास ने अपने मुताबिक रेवोल्यूशन में चेंज ला दिया. ओके, एंड यू विल कम टू नो कि दैट इज नोन एज द सेकेंड रेवोल्यूशन. in June 1792, because the unicameral legislature was functioning, but in the meantime in June 1792, you know कि lower class captured the revolution. अब what happened here, I have to make you, जैसे पहले जो नेशनल असेंबली बना था यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, इसमें एक राइटिस्ट मेंबर, जैसे मैं आपको बताना चाहता कि देखिए नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली देखो, दैट इज द लेफ्ट साइड,
नेशनल असेंबली। तो नहीं, प्रो मोनार्कियल एलिमेंट्स, प्रो मोनार्कियल एलिमेंट्स, रेडिकल एलिमेंट्स, रेडिकल एलिमेंट्स। इस रेडिकल एलिमेंट्स में कौन है? तो जीरोंदिस्ट, जीरोंदिस्ट एंड जैकोबियंस, जैक्यूएंस। यहां पर हम आपको क्लियर करें, मेंटली अलर्ट हैं आप लोग। जैसे देखो 1791 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और एक नेशनल एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर काम करने लगा, वो नेशनल असेंबली थी, वो फॉर्म हुई थी नए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। अब ये जो असेंबली थी इसमें क्या था कि दो तरह के मेंबर्स थे। एक तरफ मेंबर्स थे जो मैंने आप यहां राइट में देखो, यहां पर मैं जहां पेन घुमा रहा, ये हुए प्रो मोनार्कियल एलिमेंट्स। दे बिलोंग टू प्रो मोनार्कियल, माने ये राजतंत्र के पक्षधर थे। और चूंकि राजतंत्र की शक्ति छीन ली गई थी तो इनका डिमांड था कि रिस्टोर द पावर ऑफ मोनार्की। जैसे पावर जो पहले मोनार्की का था, राजतंत्र का था, उसको आप रिस्टोर करिए। इधर जो रेडिकल मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो रेडिकल मेंबर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई मोनार्की को फिनिश करिए, हटाइए, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को भी फिनिश करिए और यहां पर रिपब्लिक लाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड रिपब्लिक? In republic, the head of the government should be elected, not hereditary. And there, in constitutional monarchy, the head of the state is hereditary, you know. Louis XVI was actually the head of the state or head of the nation at that time. वो कहा कि उसको अबोलिश करिए, हटाइए, यहां पर किंग को स्टेब्लिश, सॉरी किंग को हटाइए और रिपब्लिक बनाइए। ये मेंबर्स कौन थे? तो दो नाम है, आप लोगों को टिप्स ऑफ द टंग पर होना चाहिए, जीरोंदिस्ट एंड जैकोबियंस। तो जीरोंदिस्ट थोड़ा कम रेडिकल थे और जैकोबियंस और भी रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब होता है कि दोज हु एडवोकेटेड फॉर द बेसिक चेंज, फंडामेंटल चेंज, वाइड एक्सटेंट चेंज, सो दैट इज रेडिकल। तो ज्यादा रेडिकल थे। अब देखिए एक टर्म आप लोग पॉलिटिक्स में, इवन टुडे यू हियर द टर्म्स लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। राइटिस्ट, आज भी आप लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ये दो टर्म सुनते हो इंडिया में, वर्ल्ड में, हर जगह। कुछ पॉलिटिकल पार्टी को राइटिस्ट कहा जाता है, कुछ को लेफ्टिस्ट कहा जाता है। राइटिस्ट उन्हें कहा जाता है कि दोज हु बिलीव्स, दोज हु आर अपोजिंग द चेंजेज एंड दे बिलीव्स इन ट्रेडिशनलिज्म एंड दे ट्राई टू सपोर्ट ट्रेडिशन। They were against the changes and they were just, you can say, opposing the changes, and those who were traditionalist in nature. They are the pro-monarchical elements. अब संयोग राइटिस्ट लेफ्टिस्ट कहां से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। क्यों? तो अब it was merely a coincidence कि in assembly the pro-monarchical elements who advocated restoration of the old power and they believed in traditionalism, so they were sitting in this assembly in the right direction, and those members who advocated the radical change, they were sitting in the left direction. If there could have been the reverse situation, so today you might have heard the name rightist and leftist in the reverse manner, in opposite manner you can say. लेकिन उस समय क्या था कि वो राइटिस्ट एलिमेंट्स राइट में बैठे हुए थे, लेफ्टिस्ट एलिमेंट लेफ्ट में, रेडिकल लेफ्ट में बैठे हुए थे। इसीलिए आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रेडिकल चेंज की बात करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, उसको लेफ्टिस्ट बोलते हैं। और जो पार्टी चेंज का विरोध करती है, ट्रेडिशन की बात करती है, रिलीजन की बात करती है, जो ओल्ड ऑर्डर की बात करती है, उसको राइटिस्ट बोलते हैं। यहीं से आया है। फिर एनीवे, माय पॉइंट इज कि फाइनली प्रो मोनार्कियल एलिमेंट्स वर ओवर पावर्ड एंड the Girondists and Jacobians held their sway, and that's why you can say that this assembly was, you can say, captured. Pro-monarchical elements were threw out, and in the meantime, the radical members even made an attack on the palace
जो जैकोबियंस थे उन्होंने पैलेस पर अटैक किया और फिर उन्होंने पैलेस पर अटैक करके किंग को अरेस्ट कर लिया, मोनार्क को, और उनको जेल में डाल दिया। मेरी एंटवाइनेट और किंग लुइस 16 को, लुइस 16 अब चले गए जेल में। फिर उसने क्या किया, लुइस 16 जेल में। अब उसके बाद क्या किया कि इन अगस्त a new constitution was introduced, a new constitution। पुराना जो आपको पहला वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था याद करिए, इन 1791 में जो मैंने मेंशन किया उसको रिमूव कर दिया और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। अब आपको पता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, यूनिवर्सल मेल सफरेज, यूनिवर्सल मेल सफरेज। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड फ्रेंचाइज नहीं था, जितने भी पुरुष थे सभी को मताधिकार दिया गया। तो आप कहोगे महिलाओं को क्यों नहीं, ये विडंबना है उस समय की माय स्टूडेंट्स, आयरोनी है। आयरोनी ये है कि पता नहीं वीमेन को इक्वल राइट तब देते ही नहीं थे। जो मिडिल क्लास मेंबर्स थे वो भी नहीं दिया, लोअर क्लास मेंबर्स है जैकोबियंस, उन्होंने भी वीमेन के राइट को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, वर्कर्स के राइट को और जितने भी मेल मेंबर्स उसके राइट को एक्सेप्ट करके यूनिवर्सल मेल सफरेज को इंट्रोड्यूस किया। स्टिल यू कैन से इट वाज एन इंप्रूवमेंट ऑन द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, एटलीस्ट इट वाज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, ऑल्दो फ्रॉम द प्रेजेंट स्टैंडर्ड इट वाज अ रिग्रेसिव स्टेप, it was regressive, but on that standard if you are going to compare it with the previous constitution then it was a progressive step, you know। इनको यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल मेल सफरेज इंट्रोड्यूस किया। और नॉट सिंपली दैट, ऑन 25 सितंबर यू विल कम टू रियलाइज कि ऑन 25 सितंबर France was declared to be a republic। France was declared to be a republic। Now France became a republic, no more a monarchy। What it happened? France was declared to be a republic. Monarchy was removed. He was put into jail. They were. And unfortunately, my students, in 1793, this monarch was hanged to death, executed. Even Mary Antoinette, his wife, was executed 1 year back. Now, what happens here, I have to make you clear. Because why the monarch was executed, you know? Why it was declared to be a republic? तो अब देखो, a war between France and यूरोप। अब देखो, जैसे रिपब्लिक के डिक्लेरेशन से पहले जब जून में किंग को कैप्चर किया गया और अगस्त में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, तो उसी समय यूरोप और फ्रांस के बीच एक वॉर छिड़ गया। और कहोगे भाई वॉर क्यों छिड़ा? तो अब वन इज द सरफेस कॉज, वन इज द सुपरफिशियल कॉज, अनदर इज द डीप कॉज। व्हाट इज द सुपरफिशियल कॉज? सुपरफिशियल कॉज इज दैट the French monarch Louis XVI was related to the King of Austria. Actually, his wife Mary Antoinette was the sister of the Austrian King Francis I. So Francis I tried to rescue his sister and brother-in-law from France because they became captive। तो मतलब यह हुआ कि ऑस्ट्रिया का जो शासक फ्रांसिस फर्स्ट था, मेरी एंटवाइनेट उसकी सिस्टर थी और लुइस 16 उसका ब्रदर इन लॉ था। तो वो अपने ब्रदर इन लॉ सिस्टर को बचाना चाहता था। तो ऑस्ट्रिया ने पहले कमान संभाला, तो उसके साथ रूस भी मिल गया, उसके साथ स्वीडन भी मिल गया, फिर ब्रिटेन का सपोर्ट भी मिलने लगा। तो कई यूरोपियन कंट्रीज ने कोलिशन बनाकर फ्रांस पर अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया।
तो फ्रांस और शेष यूरोप के बीच एक वॉर शुरू हो गया। अब ये रेवोल्यूशनरी वॉर का रूप ले लिया। अब कहोगे कैसे? तो ऊपर के स्तर पर देखोगे, मैं स्टूडेंट्स यू हैव टू बी क्लियर, मैं अभी बोल रहा हूं फिर आपसे पूछ लूंगा कि सुपरफिशियल स्केल पर तुम देखोगे तो जैसा डेविड थॉमसन मानते हैं कि इट अपियर्स दैट कि चूंकि ये रिलेशन में था, तो ड्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्ट्रियन मोनार्की एंड फ्रेंच मोनार्की, द फ्रेंच मोनार्की गॉट द आउटसाइड सपोर्ट. But if you will observe deeply, you will come to realize that no, it was not the case. It was a war between the old Europe and new Europe. Means ki when the French Revolution occurred, and you know, the French Revolution occurred and in the Declaration of Rights of Men and Citizens in France. So ideologically, France went far ahead of Europe. So now the French Revolution started to threaten the old order in Europe. यहां पर मैं एक दो घटना और बताना चाहूंगा कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्यूडलिज्म को अबोलिश कर दिया गया, यानी एरिस्टोक्रेटिक क्लास का राइट्स खत्म हो गया, क्लर्जी क्लास का राइट खत्म हो गया. दे बिकेम द कॉमनर्स, दे केम ऑन द common, you can say, on the same plank with the commoners, you know. France became a country of free citizen. The people of France were known as citizen, नागरिक और जो सिटीजन और पीपुल है उसमें फर्क है. पीपुल में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सिटीजन में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. मोनार्की को अबोलिश कर दिया गया. तो मोनार्की, एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड चर्च, ये तीन थे ओल्ड यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव. तो जब फ्रांस में इनको अबोलिश किया गया, तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है. आई डोंट नो, माय इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स माइट हैव मे हैव फाउंड द मीनिंग और नॉट. दे कुड हैव अंडरस्टैंड दिस हिंदी प्रोवर्ब और नॉट. मीन्स की इन फैक्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग वन, अ मैंगो इज गोइंग टू बी राइप, सो द राइपनेस ऑफ वन मैंगो इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द अदर मैंगो. The ripeness of one melon is going to affect the other melon. उसी तरह से जब फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ, ओल्ड रिजीम को ब्रेक कर दिया गया, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को अबोलिश कर दिया गया, चर्च के जो प्रिविलेज थे उसको फिनिश कर दिए गए, मोनार्की को रिमूव कर दिया गया. तो अब इस बात से यूरोप के बाकी देश डर गए. अब जैसे सपोज करो कि कोई किसी के नौकर सर्वेंट रिवोल्ट करके उसको पीट डालता है, तो सभी लोग सभी लोग एक ग्रुप बना के चाहते हैं कि हम उसको पीट डाले, ताकि ऐसा ना हो कि कल को मेरा नौकर भी हमें पीट डाले. तो मतलब ये होता है कि बेसिकली ये जो एक मेंटेलिटी होती है, तो यूरोपियन जो ओल्ड ऑर्डर है और यूरोपियन मोनार्क से वो डर गए कि आज वहां आग लगी है, वो जो it should not spread like the forest fire and engulf even the other countries. So it is better कि all of you have to douse the fire collectively. We have to douse the fire collectively. हमें चल के फ्रांस में आग को बुझा देना चाहिए. That's why कि what was a revolution in France became a war in Europe. And through this war, French Revolution spread to other parts of Europe. अब मैं स्टूडेंट्स अभी से लेकर नेपोलियन तक देखते चलिए. इसी वॉर के साथ फ्रांस का रेवोल्यूशन पूरे यूरोप के रेवोल्यूशन हो जाएगा. एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड टू बी ट्रांसफॉर्म होल ऑफ यूरोप, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन वुड कन्वर्ट इनटू एन ऑल यूरोपियन रेवोल्यूशन. वो आप लोग देखोगे. और इधर उस वॉर, जब वॉर फ्रांस और यूरोप के बीच जब वॉर का इन्वायरमेंट बन रहा था, तो उधर जो प्रो मोनार्कियल एलिमेंट जो पीछे मैंने बताया था, वो भी इस वॉर को मतलब इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि प्रो मोनार्कियल एलिमेंट्स को लगता था कि हम इसी वॉर के बहाने, इसी वॉर का फायदा उठाकर हम मोनार्की के पावर को रिवाइव कर लेंगे. ये समझते थे कि हम मोनार्की के पावर को हम रिवाइव कर देंगे इसी वॉर का, इसी वॉर से हमको फायदा हो जाएगा, मोनार्की को फायदा हो जाएगा. और जो रेडिकल्स हैं, जीरोनिस्ट एंड जैकोबियंस, दे वर हैविंग देयर ओन यू कैन से ऑब्जेक्टिव. यस, विद द सपोर्ट ऑफ द वॉर we will restore, with the support of the war and
while taking the pretext of the war, we have to completely destroy the monarchy and we have to declare France to be a republic. तो दोनों के अपने अपने दांव थे. अंत में इसमें अपर हैंड मिला जिरोंदिस्ट एंड जैकोबियंस को और उन्होंने रिमूव कर दिया मोनार्की को और उन्होंने एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया 25 सितंबर को. इसी वॉर का फायदा उठा के उन्होंने फ्रांस के लोगों को कन्विंस किया कि देखिए हमारा एनिमी हमारे दरवाजे पर आ गया है, अब अगर हम मोनार्की को नहीं फिनिश करते हैं तो वो मोनार्की के पावर को रिस्टोर कर देंगे. और उसी प्रेटेक्स्ट पर उसने मोनार्की को ही समाप्त कर दिया और रिपब्लिक फ्रांस को घोषित कर दिया. तो यहां तक का डेवलपमेंट. इफ यू पीपल हैव टू गिव मी द क्लीन चिट, yes, now I am clear up to this point, then I will go further. So Mr. Ankur asked my students कि up to this point are they clear or any difficulty? I'm just waiting for your response, my students. Yes. क्या क्लियर है? Yes, okay. तो अब चलिए, अब क्या हुआ कि फ्रांस तो रिपब्लिक हो गया, एवरीथिंग इज ओके, बट प्रॉब्लम स्टार्टेड नाउ. एंड नाउ प्रॉब्लम स्टार्टेड बिटवीन जिरोंदिस्ट एंड जैकोबियंस. A new assembly which had been formed after on the basis of the new constitution, new assembly. So new assembly was formed. Its name was National Convention. Just on the basis of the constitution of 1792, you know, a new assembly was formed. Its name was National Convention. That is called National Convention. So in this National Convention, you can say there were two members, two types of members. In National Convention, there were the two types of members. One type of member was called Girondist. Girondist, another is Jacobian. Jacobian. Jacobians were more furious. Jacobians were more radical than Girondists because Girondists represented the lower middle class and Jacobians represented the lower class. मतलब जो Girondist थे, Girondist से Jacobians ज्यादा radical थे क्योंकि Girondist जो है वो लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, निम्न मध्य वर्ग को, और जैकोबियंस निम्न वर्ग को. सो दे वर मोर रेडिकल. तो व्हेन द फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ रिपब्लिक, तो जिरोंदिस्ट just tried to assert that as France was declared to be republic, so objective of the revolution is fulfilled now. Now the revolution had not to move further, but Jacobians were radical enough to carry the revolution further on. Jacobians were not going to be satisfied with the present state, you know. So Jacobians, just like you can say, that is, Jacobians was emphasizing कि no, revolution had not to stop here. Revolution had to make the total transformation in France. So it was on this issue the differences cropped up between the Girondists and Jacobians as well. Jacobians were much more organized than Girondists, and Jacobians were having the three different power base. One was the National Assembly. Second one was commune. Commune was an organization. Commune was an organization, you can say, actually in course of the revolution, you can say peasant. In course of the revolution, the peasants and the workers, what you know as the mob of Paris. So mob of Paris was, you can say, was from the mob of Paris, a commune, an organization was formed. And Jacobians were representing the
मॉब ऑफ पेरिस। मैंने जैकोबियंस एक खास ड्रेस पहनते थे, कभी एनसीईआरटी जो क्लास 9 का उसमें लिखा हुआ है कि जैकोबियंस का एक बड़ा स्पेसिफिक ड्रेस था। वो एक जैसे डॉकयार्ड वर्कर्स होते थे फ्रांस का, तो डॉकयार्ड वर्कर्स पहनते थे स्ट्राइप्ड पायजामा, मैंने उस पर स्ट्राइप बना हुआ पायजामा, तो स्ट्राइप्ड पायजामा दे वर वेयरिंग एंड रेड कैप, सो दिस वाज द स्पेसिफिक जैकोबियन ड्रेस। तो जैकोबियन लोग थे वो वही मॉब ऑफ पेरिस को रिप्रेजेंट करते थे, और मॉब ऑफ पेरिस ने ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसका नाम था कम्यून, और दूसरा था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन ने क्लब भी बनाया हुआ था, उसको कहते हैं जैकोबियन क्लब। डू यू नो इवन टीपू सुल्तान ऑफ इंडिया वाज ए मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, यू नो द जैकोबियन क्लब। एंड थर्ड वन इज, यू नो, national convention. Even in national convention, the members of Jacobians were larger than that of Girondist national convention. Apart from that, these Jacobians were having other power base like Jacobian club and commune. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों में अब मतभेद हो गया, जैकोबियंस और जिरोंदिस्ट में, और जिरोंदिस्ट जैकोबियंस से ज्यादा जैकोबियंस जिरोंदिस्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। उनके 3 पावर बेस थे, एक तो नेशनल असेंबली हो गई, दूसरा जैकोबियन क्लब हुआ, और तीसरा कम्यून हुआ। तो इन तीनों पर उनका कंट्रोल था, तो इन तीनों का फायदा उन्होंने उठा लिया और अपनी पोजीशन मजबूत करके। और तब क्या हुआ, इन जून 1793 जैकोबियंस अटैक्ट ऑन नेशनल कन्वेंशन। मतलब जैकोबियंस का एक मॉब है, पेरिस की मॉब लेके जैकोबियंस आए, जो नेशनल कन्वेंशन उस पर हमला किया, और मैंने उस पर अटैक किया, और जितने भी जिरोंदिस्ट मेंबर्स है उसको असेंबली से बाहर ड्रैग आउट करके, माने द जिरोंदिस्ट मेंबर्स वर ड्रैग्ड आउट फ्रॉम द असेंबली एंड दे वर, यू कैन से they were killed. They were killed and there was the cold-blooded murder of the Girondist members. तो जैकोबियंस ने असेंबली को जिरोंदिस्ट से क्लीन कर दिया। उसके बाद इन जून 1793 माय स्टूडेंट्स, in June 1793 there established a system or a type of government you might have heard about, that is called Jacobean terror. Jacobean terror. Now you will come to know कि Jacobean terror and time period is 1793 to June 1793 to 94 या 1790 June 1793 to 94. That is the era of Jacobean terror. Here you will come to know that there were the different Jacobean leaders, you know, Dante, Herbert, Robespierre, etc. So later even actually here you come to know that Jacobean terror in Jacobean period, you know, that there were certain organizations. Certain organization means, you know, that is known as public Safety Commission. They made Public Safety Commission plus Revolutionary Tribunal. Revolutionary Tribunal मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, जैकोबियन जो गवर्नमेंट था, जैकोबियन गवर्नमेंट था, उसने एक ट्रिब्यूनल बनाया, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया। और रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल का फीचर ये था कि किसी को किसी समय ट्रायल करके किसी समय, और एक खास प्रकार का एक तुम कह सकते हो एक वेपन डेवलप किया, उसको कहते हैं गिलोटिन। मतलब गिलोटिन एक वेपन होता था जिसको पनिशमेंट दिया जाता था, उसके गले, उसका जो नेक है उसको फंसा के उसको चॉप्ड ऑफ कर दिया जाता था, मतलब उसको काट दिया जाता था उससे, और उसको मार दिया जाता था। तो लोगों को मारने वाला एक वेपन था, उसको कहते थे गिलोटिन।
तो उन्होंने गिलोटिन पर जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल फैसला देता कि जिसके बारे में उसका ये होता, जजमेंट होता, डेथ सेंटेंस देता और गिलोटिन पर चढ़ा देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक जैकोबियन टेरर है, वो जैकोबियन टेरर में एक्चुअली मैटर ऑफ सरप्राइज दैट कि जैकोबियन टेरर वाज established in France. It was the terror was established there, and it was in the name of Rousseau. Rousseau, the general will of Rousseau, and you will be surprised to know that this Jacobean terror and Jacobean government was formed in the name of the lower class people, but maximum number of people who were put on the guillotine for execution. So most of the people were coming from the lower class itself. मतलब जैकोबियन टेरर है, तो जैकोबियन टेरर का जो जैकोबियन गवर्नमेंट है वो लोअर क्लास के नाम पर गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें लोअर क्लास को ही गिलोटिन पर चढ़ा के मार दिया गया। अब इसी से आप अनुमान कर लीजिए इस टेरर के बारे में। तो एंड सरप्राइजिंगली यू कैन से कि इन फैक्ट डिफरेंसेस cropped up even among the leaders themselves. A time will come when Robespierre would eliminate Herbert, Dante all, and Robespierre himself, Robespierre guillotinized Herbert, Dante all were eliminated, and Robespierre became the single one dictator. And the government was run by Robespierre directly. There was the one man rule, and the government of Robespierre became the living example of the modern dictatorship. मतलब रॉसपियर ने अपने आप को डिक्टेटर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। अब देखो, अब you might have gone through my study material, so I have just discussed about कि the merits and demerits both. What is the merits of this Jacobean rule? Do you know? It accepted the right to फूड। ये लोअर क्लास के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। डू यू नो ये क्या एक्सेप्ट किया? राइट टू फूड, राइट टू वर्क, और राइट टू फूड और राइट टू वर्क को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब आप लोग तो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि लोअर क्लास के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, राइट टू फूड, राइट टू वर्क। देन डू यू नो इवन right to revolt against an anti-people government। एंटी-पीपुल गवर्नमेंट के अंतर्गत के विरुद्ध रिवोल्ट करने का राइट भी है लोगों को। और एक बात और भी है जिसको कहते हो, देयर इज द नेम military conscription, policy of military conscription, policy of military conscription। जैसे मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन है, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब यू माइट हैव हर्ड अबाउट the compulsory military service। मतलब all the able-bodied people of France, they were encouraged to join the military service. They had to join the military service, So France could create a citizens' army, and that became the secret behind the military success of France against the all European countries. Later it will define even the success of Napoleon Bonaparte। Why did Napoleon Bonaparte get such tremendous success in the battlefield? This compulsory military service was introduced by whom? Do you know? That was a military general. His name was Carnot. Carnot introduced this, and it became the basis for the success of Napoleon in future. अब फ्रांस का वॉर यूरोप के अन्य देशों से हो रहा है। अब 4 to 5 कंट्रीज ने कोलिशन बनाकर फ्रांस से वॉर किया है।
अब उन सबके सोल्जर्स को आप काउंट करिए सभी मिला के तो फ्रांस के सोल्जर से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन फ्रांस ने जो अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू कर दी, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, तो फ्रेंच सोल्जर्स इवन then you can say French soldiers outnumbered the combined soldiers of the coalition. It was due to this compulsory military service and it became the basis for the success of France in future war. तो इस अच्छा, उसके बाद revolutionary calendar was introduced. Revolutionary calendar was introduced, you know. It was a great success, you know. The objective of the revolution was defined, you know. The leftist ideas were encouraged, but demerit, abuse, you can say, it presented an example of an organized violence, when organized and institutionalized. Institutionalized violence. इंस्टीट्यूशनलाइज वायलेंस मतलब ये जो तुम देखोगे ये वायलेंस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज है, गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, यू कैन से। इट बिकेम एन एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न डिक्टेटरशिप एंड देयर वाज द वाइड एक्सटेंट misuse of the power and abuse of human rights. So that became the demerits of such government, you know. That is called Jacobean rule. This Jacobean rule could not survive longer because reactions set in, because the large number of people were just butchered, you know, they were guillotinized, they were put to death indiscriminately. So reactions set in. And then you will find here that there occurred a Thermidorian reaction, that is known as Thermidorian reaction. And even Robespierre, who was the mastermind behind this Jacobean terror, so finally he was himself put on guillotine by the members of this government itself, because people were fed up with the violent policy of Robespierre. So he was put on the guillotine, he was killed, and then Jacobean rule ended in June 1794. मतलब थर्मोडोरियन रिएक्शन क्यों कहते हैं आप इससे आप कंफ्यूज मत करना। थर्मोडोरियन नाम था फ्रेंच कैलेंडर का, एक फ्रेंच कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका नाम था थर्मोडोरियन। और ये कैलेंडर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 9th थर्मोडोरियन दिन के दिन इंट्रोड्यूस हुआ था, 9th थर्मोडोरियन कैलेंडर के हिसाब से। सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड थर्मोडोरियन रिएक्शन। एंड इन 9th थर्मोडोरियन के दिन रॉसपियर का गवर्नमेंट का डिक्लाइन हुआ था, 9th थर्मोडोरियन के दिन, उनका डेट के उस डेट में, इसलिए इसको कहते हैं थर्मोडोरियन रिएक्शन। और मैं आपको बताऊं कि इसमें रॉसपियर को अपने ही जो पार्टी के लोगों ने उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया एंड ही वाज पुट टू डेथ, क्योंकि वह मास्टरमाइंड था हर टाइप के वायलेंस का। एंड फाइनली यू कैन से दिस गवर्नमेंट एंडेड in June 1794. So the second phase is just ended and you have to enter into the third phase, which started from 1795 onwards, you know. So Mr. Ankur, give me the information here, and 1794 to 1799. So please my students, please you have to give me the information now कि what your condition, कि up to this point are you clear or any confusion? अंकुर कोई क्वेश्चन भी है? अच्छा पहले क्वेश्चन कर लेने दो फिर आप जवाब देना। हाँ भावना पूछ रहे, did lower class people also participate in constitutional monarchy assembly 19? No, हाँ yes, 17 कौन 1792? हाँ yes, in 1792 there was the participation of lower class. भावना, actually the lower class people participated in Bhavna. That's why you know that such a radical constitution could have been adopted.
lower class people participated in this constitution, you know. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर रिवोल्यूशनरी कैलेंडर व्हाट इज? रेवोल्यूशनरी कैलेंडर का मतलब होता है कि वो रॉसपियर के गवर्नमेंट ने नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम दिया रेवोल्यूशनरी कैलेंडर. इट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रॉसपियर, सो इट वाज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी कैलेंडर. साक्षी थर्मोडोरियन रिएक्शन. अभी साक्षी पहले पूछी होगी, मैंने थर्मोडोरियन भी बताया है. थर्मोडोरियन इज द नेम ऑफ साक्षी. थर्मोडोरियन इज द नेम ऑफ द कैलेंडर in France, and as this incident happened on the day of 9th Thermidorian, जैसे तुम कहते हो ना 31 तारीख, 30th तारीख, 30th जून, 15th जून, उसी प्रकार से वो 9th थर्मोडोरियन के डेट में हुआ था. रॉसपियर का गवर्नमेंट डिक्लाइन किया था, इसलिए उसको कहते हैं और रॉसपियर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिएक्शन हुआ और उसको रॉसपियर को किल कर दिया गया. दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड थर्मोडोरियन रिएक्शन. My students, are you clear? Please give me the hint. Be fast. Please, my students, I am just waiting for your answer. Okay? Up then you come to third phase. What is the question? Pavitra पूछे was there any reaction from women's side? Which side? Women. Pavitra, actually in women's side there was a reaction, you know. Actually, you will come to know about a woman in France. I will discuss about the role of women. In NCERT book in 9th class, in one page you will find a woman leader. And I am just forgetting her name. I will give you the name tomorrow. What was her name? She was the very fiery women leader. और मैं आपको बताऊं कि जो women's का जो rights of men and citizen, what was her name? I am just जुबान पर नहीं आ रहा, tips of tongue पर एक name है women का, वो बहुत fiery lady है. जब rights of men and citizen पवित्रा जब declaration आया था तो उसमें rights of men था, तो in reaction she has written rights of women and citizen, और वो मेरी एंटोइनेट को भेजा जो किंग 16 थे उसके वाइफ को कि भाई आप इसको प्रमोट करिए, ये राइट्स ऑफ ह्यूमन भी होना चाहिए. लेटर शी वाज हैंग्ड, शी वाज एग्जीक्यूटेड, शी वाज हैंग्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रॉसपियर. वुमेन्स का रिएक्शन हुआ, लेकिन वुमेन्स के रिएक्शन को पवित्रा दबा दिया, उसको सप्रेस कर दिया. If the Jacobians belongs to lower class, then why relocation of land not happened? Redistribution was not happened because the Robespierre's government, it was just experimenting. It took the power and after 1 year it was removed. If this government could have survived, who has asked this question? Ankit, if this government of Robespierre might have survived, so he would have implemented even the land reforms, you can say, or distribution of land or whatever might be, but it could not survive longer. Garima पूछ रही है, I am not clear about Jacobian attack on. I'm not clear about who? Garima. Garima, actually, they are the two assembly. Just try to understand. Garima, just pay attention to my speech. In 17, I have told you, in fact, when the tennis court assembly start in the first phase, come to the first page, starting from 1789, then tennis court. In tennis court, there was the formation of a national assembly. Actually, there was the, you can say, tennis court assembly, and this tennis court assembly worked as a constituent assembly, Garima, and then this tennis court assembly framed a constitution which was enforced in 1791. That was the middle class reflection of middle class view, I told you, and this constitution has started to function. So this constitution was known as the National Assembly. This constitution started to function in 1791, and there was the formation of a unicameral legislature. Unicameral legislature, that was National Assembly. उस National Assembly में मैंने बताया कि उसी National Assembly में एक तरफ राइटिस्ट व्यू वाले मेंबर्स बैठते थे, प्रो मोनार्कियल, दूसरी तरफ जिरोंदिस्ट और जैकोबियंस. तो बाद में जैकोबियंस और जिरोंदिस्ट ने रेवोल्यूशन पर कंट्रोल कर लिया, यानी कब्जा कर लिया अटैक करके, और तब जून में उन्होंने असेंबली पर कब्जा कर लिया और सितंबर में फिर वो नए कॉन्स्टिट्यूशन ला दिए.
वो जो नए कॉन्स्टिट्यूशन सितंबर 1902 में लाए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को नेशनल कन्वेंशन कहा जाता था। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन है, याद करना, एक 1791 में, एक सितंबर 1792 में। पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिडिल क्लास का कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूनिवर्सल मेल सफरेज को इंट्रोड्यूस करता है। गरिमा। Ashwani question, why wasn't then their reaction against killing of Robespierre by his support? नहीं, उसका सपोर्टर्स नहीं तो रॉसपियर को किल किया था। रॉसपियर ने जब लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली मारना शुरू कर दिया तो आपस में उनकी मारकाट मच गई। रॉसपियर ने भी तो अपने फ्रेंड्स को मार दिया था। उसके फ्रेंड्स थे, हर्वर्ड थे, दांते थे, तो सबको एलिमिनेट, सबको ग्लूटिनाइज कर दिया था। तो रॉसपियर के जो एसोसिएट्स थे उन्होंने तो उनको गिलेटिन पर चढ़ाया है। How did lower class surpass middle class? सेकेंड स्टेज में चूंकि लोअर क्लास ने चीटेड फील किया, उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो था, तो पहले फर्स्ट स्टेज में तो लगता था कि चलो बड़े भैया हैं, वो बड़े भैया हैं तो हम भी हैं, दे विल हेल्प अस। लेकिन व्हेन द मिडिल क्लास लीडरशिप डिडंट डू जस्टिस टू देम, सो फाइनली यू कैन से कि they were dissatisfied and they tried to throw out the leadership of the middle class. सूर्यकांत तिवारी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बुक लिस्ट में तो एक लंबी चौड़ी सूर्यकांत लिस्ट बनेगी, कोई एक दो अगर खुद से पढ़ोगे तो इट विल टेक मतलब एक बुक लिस्ट में आपको, आप एंशिएंट में ऐसा करो, उपिंदर सिंह आपके लिए, बट फॉर बेसिक स्टडी नॉट उपिंदर सिंह, बेसिक स्टडी एनसीईआरटी बुक देन उपिंदर सिंह, एंड इन मेडिवल में यू कैन जस्ट गो थ्रू द सतीश चंद्रा मेडिवल हिस्ट्री, एंड इन मॉडर्न शेखर बंदोपाध्याय, in world history you can Ranjan Chakrabarti and outline of world history you can go through. प्रियांशु बता रहे हैं that woman name is Olympe de Ghost. Yes. Olympa the Guj. The name is Olympa the Guj. Thank you for recalling the name. Who has given the name? Priyanshu. Yes, Priyanshu. Thank you. Olympa the Guj was the name of the lady. She was executed finally. And she was a very fiery and revolutionary lady, you know. प्रमोद बोल रहे हैं सर, in terror demerit point. Demerit point, it was violent. It did so many bloodshed, you know. So that was a demerit. It became the symbol of modern dictatorship. That was demerit. I have discussed about so many demerits, you know. Okay, sir. Okay, my friends, our time is over. I'll see you tomorrow. Thank you very much. I'll see you tomorrow again. So not tomorrow, on Monday. I will see you on Monday. Once again, I am making the correction, not tomorrow, on Monday. I will send you the study material letter on Monday.